السلام علیکم۔ آپ کی خدمت میں نصیر احمد ایک واقعہ لے کر حاضر ہے۔ یہ واقعہ مجھے ایک میرے طالب علم نے سنایا ہے اور اس کے بقول یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ میں اسی کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میرا نام نوید ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم پشاور میں رہا کرتے تھے۔ میں اس وقت 7ویں کلاس میں پڑھتا تھا۔ میرے والد صاحب پاکستان آرمی میں صوبیدار میجر تھے اور ہمیں آرمی کی طرف سے ایک مکان ملا ہوا تھا جس میں ہم رہتے تھے۔ ہم 2 بھائی اور 3 بہنیں ہیں اور میں سب سے بڑا ہوں۔ ہمارے گھر کی پچھلی سائڈ پر جھاڑیاں تھیں اور ایک برگد کا درخت بھی تھا جو کہ سوکھا ہوا تھا اور اس کے پتے پیلے پڑ چکے تھے۔ اگر کوئی اس طرف جاتا تو اس درخت کو دیکھ کر ہی خوف آتا تھا۔ وہ درخت بہت بڑا تھا اور کافی ایریا پر پھیلا ہوا تھا۔ اس درخت کے سامنے بچوں کے جھولے لگے ہوئے تھے۔ وہاں دوپہر کو اکثر بچے آتے اور جھولے لیتے تھے اور شام سے پہلے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ ہمارا گھر ایک کیمپ میں تھا اور وہاں سب آرمی سے متعلقہ لوگ رہتے تھے جو ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے گھر کی پچھلی سائڈ پر جھولے لینے جاتا تھا اور شام سے پہلے گھر واپس آ جاتا تھا۔ برگد کے اس درخت کے بارے میں کئی کہانیاں مشہور تھیں اور وہ واقعات اکثر شام کو ہی پیش آئے تھے، اسی لیے سب بچے شام ہونے سے پہلے اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے۔ اس درخت سے متعلق جتنے واقعات تھے جمعرات کو پیش آئے تھے اور اس لیے جمعرات کو تو اس طرف کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ میرا مزاج ایسا تھا کہ جب تک میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہ لوں میں کسی بات پر یقین نہیں کرتا تھا۔ اس لیے اس درخت سے متعلقہ جتنے بھی واقعات تھے میں ان کو سنجیدہ نہیں لیتا تھا۔ میری والدہ سنجیدہ ضرور لیتی تھیں اور مجھے اکثر کہا کرتی تھیں کہ اول تو تم نے اس طرف جانا نہیں اور اگر جاؤ بھی تو شام ہونے سے پہلے گھر واپس آ جاؤ۔ میں اپنی والدہ کی ہر بات مانتا تھا۔ ایک دن دوپہر کو میرا ایک دوست جس کا نام شاہد تھا میرے گھر آیا اور ہم نے گھر میں ہی کیرم کھیلنا شروع کر دیا۔ کیرم کھیلتے کھیلتے میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ جھولے لینے چلتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ ابھی تو دیر ہو گئی ہے اور میری والدہ مجھے نہیں جانے دیں گی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تم اپنی والدہ سے کہنا میں نوید کے گھر جا رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ میں جھوٹ نہیں بولتا۔ اس نے کافی اصرار کیا اور مجھے والدہ کو جھوٹ بولنے پر راضی کر لیا۔ میں نے اپنی والدہ سے ویسے ہی جھوٹ بولا اور نوید کے ساتھ اپنے گھر کی پچھلی سائڈ پر جھولے لینے چلا گیا۔ پہلے ہم دونوں فٹ بال کھیلتے رہے، پھر جب فٹ بال کھیل کھیل کر اکتا گئے تو ہم نے جھولے لینا شروع کر دیے۔ جھولے لیتے لیتے ہمیں وہیں پر شام ہو گئی اور جب ہم گھر جانے لگے تو پیچھے سے کسی نے میرا نام لے کر آواز دی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک بوڑھی عورت کھڑی تھی۔ اس عورت نے مجھے کہا کہ بیٹا ادھر آؤ، بات سنو۔ میں جیسے ہی اس کی طرف جانے لگا تو نوید نے مجھے روکا نہ جاؤں، لیکن میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بوڑھی عورت کی طرف چلنا شروع کر دیا جیسے نوید کی میں نے آواز ہی نہ سنی ہو۔ میں اپنے آپ کو روکنا چاہ رہا تھا لیکن روک نہیں پا رہا تھا۔ مجھ پر اس وقت ایک عجیب کیفیت آ رہی تھی اور میرے قدم خود بخود اس عورت کی طرف چلتے جا رہے تھے، جبکہ شاہد نے مجھے کئی مرتبہ آوازیں دی کہ رک جاؤں اور اس کی طرف نہ جاؤں۔ شاہد مجھ سے تھوڑی دور ہی کھڑا تھا لیکن اس کی آواز مجھے بہت ہلکی سی آ رہی تھی، جبکہ اس بوڑھی عورت کی آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ جب میں نے شاہد کی بات نہ سنی تو وہ ناراض ہو کر اپنے گھر چلا گیا۔ میں اس عورت کی طرف نہ چاہتے ہوئے بھی چلتا جا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ان میں عجیب قسم کی کشش تھی جو کہ میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ جب میں اس عورت کے پاس گیا تو اس کی آنکھیں پہلے تو چمک رہی تھیں لیکن میرے پاس جانے کے بعد لال سرخ ہو گئیں اور اس کی شکل اتنی خوفناک ہو گئی کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بال لمبے ہوتے چلے گئے اور وہ آہستہ آہستہ فضا میں بلند ہونا شروع ہو گئی۔ پھر اس نے فضا میں تھوڑا اوپر جا کر اپنا ہاتھ نیچے میری طرف بڑھایا تو اس کا بازو لمبا ہو کر زمین تک آ گیا۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور فضا میں مزید بلند ہونا شروع کر دیا۔ میں اتنا خوفزدہ ہو چکا تھا کہ میرے منہ سے کوئی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ میں خوف کے مارے چیخنا چاہتا تھا لیکن میری آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس نے مجھے اپنے بس میں کر لیا ہو۔ میری پوری توجہ اس کی طرف تھی
اور मैं उसकी तरफ देखता ही जा रहा था और मुझे खुद नहीं मालूम था कि मैं ये सब कुछ देखने के बाद होश में कैसे था। मेरी उस वक्त बहुत अजीब कैफियत थी। फिर मुझे मेरी वालदा की आवाज़ सुनाई दी। मेरी वालदा मुझे मेरा नाम लेकर ज़ोर ज़ोर से पुकार रही थी। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी वालदा की आवाज़ बहुत दूर से आ रही हो और फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी वालदा की आवाज़ बुलंद होना शुरू हो गई। मुझे ऐसे लगा जैसे उस औरत ने एक डोर के साथ मेरे दिमाग को बांध रखा हो और आहिस्ता आहिस्ता वो डोर टूटती जा रही थी और मैं उसके कब्ज़े से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता अपने होशावास में आ रहा था। फिर वो औरत गायब हो गई और मैं अपने पूरे होशावास में आ गया। जैसे ही मैंने मुड़कर पीछे देखा तो मेरी वालदा खड़ी थी। मेरी वालदा की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। वो कह रही थी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो शाहिद के घर खेलने के लिए गए थे। मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ ना निकला और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मुझे बेहोशी की हालत में भी मेरी वालदा की आवाज़ आ रही थी। वो नवीद नवीद कह कर पुकार रही थीं और चिल्ला रही थीं, लेकिन मेरी आंखें बंद थीं और मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे सकता था। फिर मेरी वालदा की आवाज़ सुनकर मेरे वालिद साहब भी उधर आ गए और उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि क्या हुआ। मेरी वालदा चिल्ला कर बोली कि देखें, नवीद को पता नहीं क्या हो गया है। जैसे ही मैं ढूंढते ढूंढते इधर आई तो ये बेहोश हो गया। पता नहीं क्या हो गया है। मेरे वालिद साहब ने मुझे उठाया और घर लेकर गए। मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था, लेकिन मैं सुन सब कुछ रहा था और मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा था मैं सब कुछ महसूस कर रहा था। ये अजीब सी कैफियत थी जो कि मुझ पर तारी थी। मैं इस सारी कैफियत से बाहर आना चाह रहा था, लेकिन नहीं आ पा रहा था। मैंने अपना पूरा जोर लगाया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनजान ताकत ने मुझे बांध रखा हो और वो मुझे हिलने भी नहीं दे रही थी। मेरा जिस्म मुझे इतना भारी महसूस हो रहा था कि मैं चाहते हुए भी अपना बाजू ऊपर नहीं उठा पा रहा था। ये सब क्या था? मेरी समझ से बाहर था। अजीब मसला था। मैं उठकर सारी बात अपने वालिदैन को बताना चाहता था, लेकिन मैं उठ ही नहीं पा रहा था। मेरी बहनों की मुझे पुकारने और रोने की आवाज़ें मेरे कानों में गूंज रही थीं, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। फिर मेरा जिस्म तपने लगा और मैं बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस करने लगा, जैसे मुझे बहुत तेज़ बुखार हो गया हो। मेरे वालिद साहब ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने सबसे पहले मेरे दिल की धड़कन चेक की। डॉक्टर ने कहा कि परेशान ना हो, आपका बेटा ज़िंदा है और बिल्कुल ठीक है और किसी खौफ की वजह से बेहोश हो गया है। मैं सब कुछ सुन रहा था, लेकिन मैं चाहते हुए भी हरकत नहीं कर सकता था। डॉक्टर ने मुझे इंजेक्शन लगाया और मेरे वालिदैन से कहा कि इसे कुछ देर तक होश आ जाएगा, आप परेशान ना हो। डॉक्टर ने कहा कि इसे बुखार भी है और मैं आपको दवा लिख देता हूँ, आप मेडिकल स्टोर से जाकर ले आएँ और जब इसे होश आया तो इसे दे दीजिएगा। मेरे वालिद साहब ने कहा ठीक है। मेरे वालिद साहब जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले आए। अगर मैं होश में आता तो दवाई खाता। जो मेरी हालत थी, मैं होश में तो था, लेकिन किसी अनजान ताकत ने मुझे इतना बेबस कर रखा था कि मैं कोई काम भी नहीं कर सकता था, अपनी आंखें भी खोल नहीं सकता था। मैं उठने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन मेरी सारी कोशिशें नाकाम रहीं। मेरी फैमिली मेरे होश में आने का इंतज़ार कर रही थी। फिर कुछ देर बाद मुझे वही औरत मुझे बंद आंखों के सामने नज़र आई। उसके बाल खुले थे और आंखें लाल सुर्ख थीं। उसका चेहरा इतना खौफनाक था कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। वो ज़ोर ज़ोर से कह कहा लगा रही थी। कह कहे लगा कर वो कह रही थी कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी, तुम मुझे अच्छे लगते हो। जैसे ही मैंने उसे ये कहते सुना तो मैंने बंद आंखों में ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। मेरी सारी फैमिली मेरी तरफ दौड़ती हुई आई जैसे मुझे होश आ गया हो। वो मुझे हिलाते रहे, लेकिन उनकी सब कोशिशें बेसूद थीं, क्योंकि मुझे तो उस औरत ने अपने बस में कर रखा था। मेरी वालदा मेरे बेड पर बैठकर कहने लगी, बेटा कहाँ नहीं जाना, बताओ तो सही। मेरी वालदा चिल्ला चिल्ला कर ऐसा कह रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था, बेबस था। वो औरत इतनी ताकतवर थी कि उसने मेरी सारी ताकतें सलब कर रखी थीं। मैंने फिर बड़बड़ाहट में उसी तरह चलाना शुरू कर दिया। मेरी वालदा मेरे वालिद साहब को कहने लगी कि आप डॉक्टर को बुलाएं, हमारे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है।
मेरे वालिद साहब ने फिर जल्दी से डॉक्टर को फ़ोन किया और थोड़ी ही देर में डॉक्टर आ गया। हमने डॉक्टर को सारी बात बताई तो वो कहने लगे कि आपका बेटा किसी चीज़ से खौफज़दा हुआ है। अब दवाई तो ये तब खाएगा जब होश में आएगा, लेकिन ये तो होश में ही नहीं आ रहा। मैं ऐसा करता हूँ, इसको ड्रिप लगा लेता हूँ। मुझे फिर डॉक्टर ने ड्रिप लगा दी, जिसके ज़रिए से दवाई मेरे जिस्म में दाखिल होने लगी। मैं बेहोश तो था ही नहीं, मुझे तो असल में उस औरत ने मुकम्मल तौर पर अपने कब्ज़े में कर रखा था। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था, और मेरी फैमिली को फिर कैसे पता चलता कि मेरे साथ क्या मसला है। मैं बहुत परेशान हो गया। सारी रात गुजर गई और अगला दिन आ गया। मैं उसी तरह बेसुध बेड पर पड़ा हुआ था। फिर घर में मेरे वालिद साहब के दोस्त अहबाब पता करने आने लगे। हर किसी ने मेरी फैमिली को तसल्ली दी और कहा कि अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो बताइएगा। मेरी सारी फैमिली परेशान थी। मेरी अम्मी की एक सहेली उनसे कराची से मिलने आई। उन्होंने कहा कि वो पेशावर आई हुई थी और सोचा कि आपसे मिलती चलूं। जब उन्होंने घर का सारा माहौल देखा और सबको परेशान हाल देखा तो वो भी अफसरदा हो गई। उनके शौहर भी आर्मी में थे और वो पहले हमारे कैंप में ही रहते थे। उनके शौहर का कुछ अर्सा पहले कराची तबादला हुआ था और वो कराची चले गए थे। वो मेरे कमरे में बैठी थी और मेरी अम्मी से बातें कर रही थी कि मुझे फिर वो औरत नज़र आई। इस मरतबा वो औरत दूर आसमान से मेरी तरफ आ रही थी और उसके बाल खुले थे और आंखें लाल सुलह थीं। उसके पाँव उल्टे थे। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ आ रही थी। जब वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई तो मैं खौफज़दा हो गया और मैंने उसी तरह बड़बड़ाहट में चलाना शुरू कर दिया। वो औरत मुझे कह रही थी कि तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाना है। उसकी आवाज़ भी इतनी खौफनाक थी कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मैं चलाने के सिवा ज़रा भी हरकत नहीं कर सकता था। वो बहुत गरजदार कह लगा रही थी कि मेरा दिल लर्ज़ रहा था और मैं कई मरतबा चलाया कि मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना, तुम चली जाओ। जैसे ही मेरी अम्मी की सहेली ने मेरी चलाने की आवाज़ सुनी तो उन्होंने अम्मी से पूछा कि ये चला क्यों रहा है। मेरी अम्मी ने बताया कि ये इसी तरह चलाता है और इसे आज दूसरा दिन है, होश नहीं आ रही। फिर उन्होंने मेरी अम्मी से पूछा कि इसकी ऐसी हालत कैसे हुई। मेरी वालदा ने फिर सारी बात उनको बताई। उन्होंने कहा कि ऐसा वाक़या तो पहले एक मरतबा यहाँ पर हुआ था और उनका बेटा भी होश में नहीं आ रहा था, और फिर उन्होंने किसी आमिर को बुलाया था तो फिर उनका बेटा ठीक हुआ था। मेरी अम्मी की सहेली ने कहा उनका बेटा भी उस बरगद के दरख्त के पास शाम को खेल रहा था और उसकी हालत भी ऐसी हो गई थी। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया लेकिन उसे होश ही नहीं आई। उन्होंने कोई डॉक्टर नहीं छोड़ा। फिर किसी ने मशवरा दिया कि आपने कई डॉक्टरों को चेक भी कराया है लेकिन आपके बच्चे को होश नहीं आ रही है। आप अपने बच्चे को किसी रूहानी आमिल को दिखाएं, हो सकता है कि ये कोई रूहानी मसला हो। मेरी वालदा की सहेली जिनका नाम शमीम था ने यह भी बताया कि कहते हैं उस बरगद के दरख्त पर किसी चुड़ैल का साया है और जो भी उस चुड़ैल के शिकंजे में आ जाता है वो उसे इतनी आसानी से छोड़ती नहीं है। मेरी वालदा उनकी बातें सुनकर मज़ीद परेशान हो गईं। वो पहले तो परेशान थीं ही और आंटी शमीम की बातों ने उनको मज़ीद परेशान कर दिया। शमीम ने मेरी वालदा से कहा कि ये परेशान होने का वक्त नहीं है बल्कि आपके बेटे की ज़िंदगी बचाने का वक्त है, और अगर वक्त हाथ से निकल गया तो कुछ नहीं हो सकेगा। कहते हैं वो चुड़ैल कई लोगों का खून पी चुकी है। मेरी वालदा ने आंटी शमीम से पूछा कि वो फिर अपने बेटे को किस रूहानी आमिल के पास लेकर गए थे। आंटी शमीम ने कहा कि ये तो उनको मालूम नहीं, लेकिन जिसने मशवरा दिया था वो उसको जानती हैं। मेरी वालदा ने पूछा कि क्या तुम मुझे उनसे अभी मिलवा सकती हो। उन्होंने कहा क्यों नहीं, बिल्कुल मिलवा सकती हूँ। मेरी वालदा और उनकी सहेली शमीम बातें कर ही रहे थे कि मेरी छोटी बहन नूर ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। मेरी सारी फैमिली उसकी तरफ दौड़ पड़ी कि आखिर क्या हुआ। वो चलाते चलाते बेहोश हो गई। मेरी सारी फैमिली परेशान हो गई कि क्या हो गया है। मेरी बहन नूर को होश आता और वो चलाना शुरू कर देती कि वो मुझे मार देगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सारी फैमिली परेशान हो गई कि ये क्या माजरा है। मेरे वालिद साहब ने फ़ौरन डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर मेरी बहन को चेक करने लगा
تو میری بہن اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو چکی تھیں۔ اس نے ڈاکٹر کو گلے سے پکڑ کر کہا کہ تو مجھے چیک کرے گا، تیری کیا مجال کہ تو مجھے چیک کرے۔ اس وقت میری بہن بہت خوفناک نظر آ رہی تھی، اتنی خوفناک نظر آ رہی تھی کہ میری ساری فیملی چلانے لگ پڑی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ ڈاکٹر بھی خوفزدہ ہو گیا اور پیچھے ہٹ گیا۔ ڈاکٹر نے کہا یہ کوئی اور مسئلہ ہے، میڈیکل کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر فوراً وہاں سے چلا گیا۔ میری والدہ کی سہیلی شمیم بولی کہ یہ سب اس چڑیل کا کیا درا ہے جو اس برکت کے درخت پر رہتی ہے۔ وہ بہت طاقتور ہے اور اسے کوئی عام عامل تو قبضے میں بھی نہیں کر سکتا۔ سب نے آنٹی شمیم سے پوچھا کہ اب کیا کیا جائے۔ شمیم نے کہا کہ اس فیملی کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے کسی عامل کے بارے میں اس فیملی کو بتایا تھا جن کے ساتھ یہ مسئلہ ہو چکا تھا۔ پھر میرے والدین آنٹی شمیم کے ساتھ اس فیملی کی طرف چل پڑے اور وہاں جا کر جب آنٹی شمیم نے ان سے اس عامل کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ اس عامل نے ایک جنگل میں ڈیرا لگا رکھا ہے اور وہ کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ آنٹی شمیم نے پوچھا کہ پھر آپ کا کام اس نے کیسے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں وہ عامل ہر وقت چلا میں ہوتا ہے اور اس نے دنیا بالکل چھوڑ دی ہے۔ ہم نے بہت منتیں کی تھیں لیکن وہ ہمارے ساتھ نہیں آیا۔ پھر ہم واپس چلے آئے تھے۔ اس کا ایک کزن ہے جو کہ اٹک شہر میں رہتا ہے۔ ہم نے اس سے رابطہ کیا، وہ اس کی بات سنتا ہے۔ اس نے پھر اس سے کہا تو پھر وہ ہمارے ساتھ آیا تھا اور عامل نے ہمارا کام کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی کہا تھا کہ میرے بارے میں کسی کو نہیں بتائیے گا۔ آنٹی شمیم نے ان سے کہا کہ پلیز کسی طرح بھی اس عامل سے کہیں کہ ہمارا کام کر دے۔ انہوں نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ اس عامل کا نام منیر شاہ تھا۔ انہوں نے اس عامل کے کزن عدنان کی طرف فون کیا اور اسے سارے مسئلے کے بارے میں آگاہ کیا۔ عدنان نے کہا کہ کام تو مشکل ہے لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ منیر شاہ صاحب راضی ہو جائیں۔ عدنان نے کہا کہ کل سب اکٹھے ہو کر منیر شاہ صاحب کے پاس چلیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کل تو بہت دیر ہو جائے گی، ان کے گھر کے 2 افراد کسی چڑیل نے قبضے میں کر رکھے ہیں۔ عدنان سے کہا کہ آپ آج کا ہی پروگرام بنا لیں۔ عدنان نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آج ہی آ جاتا ہوں۔ عدنان پھر پشاور آ گیا۔ ہم نے اس عامل کی طرف جانے کا پروگرام بنا لیا۔ جب ہم اس جنگل میں پہنچے تو شام کا وقت تھا اور وہاں اندھیرا گپت تھا، کوئی بھی زیرو ادھر نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم جنگل میں تھوڑا سا آگے گئے تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ اس نے قمیض نہیں پہنی ہوئی تھی۔ وہ بالکل ایک جنگلی انسان کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کے بال بڑے بڑے تھے اور اس کی آنکھیں سبز رنگ کی تھیں۔ اس کی طرف دیکھ کر خوف آتا تھا۔ اس سے جب عدنان نے بات کی تو اس نے کہا کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ عدنان نے پھر اسے ساری صورتحال بتائی تو اس کو رحم آ گیا اور پھر اس نے آنکھیں بند کی اور کہا کہ وہ بہت خطرناک چڑیل ہے، اللہ خیر کرے گا، سب سے بڑی طاقت اللہ کی ہے۔ پھر اس نے بتایا کہ ان کے بیٹے اور بیٹی کی زندگی بہت خطرے میں ہے۔ عامل نے مزید بولا کہ اگر آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو ان دونوں کو یہاں پر میرے پاس لانا پڑے گا۔ اس نے بتایا کہ وہ چڑیل ان کو اتنی آسانی سے ادھر نہیں آنے دے گی کیونکہ اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ آپ کس مقصد کے لیے میرے پاس آئے ہیں۔ عامل نے بولا کہ کل شام کو آپ اپنے بیٹے اور بیٹی کو یہاں پر لے آئیں۔ عامل نے ایک پانی کی دم کی ہوئی بوتل بھی میرے والدین کو دی اور کہا کہ اگر وہ چڑیل بچوں کو یہاں پر نہ آنے دے تو آپ اس پانی کا چھڑکاؤ کیجیے گا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے ہٹ جائے گی اور آپ کو یہاں آنے میں آسانی ہوگی۔ عامل بولا کہ اب آپ یہاں سے جائیں، میں آپ کا کل شام کو انتظار کروں گا، تب تک میں اس چڑیل سے مقابلہ کرنے کے لیے پوری تیاری کر لوں۔ عامل نے بتایا کہ وہ صرف ایک چڑیل نہیں ہے بلکہ اس کا پورا کنبہ بھی ہے۔ اگر میں اس چڑیل کو جلا بھی دوں تو اس کے کنبے کا کوئی دوسرا فرد بچوں پر قبضہ کر لے گا اور اپنا بدلہ لے گا۔ اس طرح سے میری جان کو بھی خطرہ ہوگا کیونکہ ہمارا مقابلہ صرف ایک ماورائی مخلوق سے نہیں ہے بلکہ اس کے پورے خاندان سے ہے، اور اس برگر کے درخت پر اس کی فیملی کے 3 افراد رہتے ہیں اور باقی انڈیا میں رہتے ہیں۔ اس لیے میں کل شام تک اپنا پورا منصوبہ بنا لیتا ہوں کہ اس کے ساتھ کیسے نپٹنا ہے۔ میرے والدین نے کہا ٹھیک ہے۔ عامل نے کچھ خوشبوئیں اور چراغ لکھ کر دیے کہ آتے ہوئے میرے والدین بازار سے لے آئیں۔ میرے والدین پھر واپس گھر آ گئے۔ جب گھر پہنچے تو ادھر کے عجیب حالات تھے۔ ہر چیز بکھری پڑی تھی اور اسٹور روم کا دروازہ بند تھا۔ جب میرے والد صاحب نے
दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरी बहन आयशा ने दरवाज़ा खोला। वो बहुत सहमी और डरी हुई थी। वालिद साहब ने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतनी डरी क्यों हुई हो? उसने जवाब दिया कि नवीद और नूर पता नहीं किधर चले गए हैं। आयशा ने बोला कि जैसे ही आप घर से गए थे तो नवीद और नूर को होश आ गया था और उनकी आंखें लाल शुरू हो रही थीं और हमें दोनों घूर घूर कर देख रहे थे और किसी और आवाज़ में बुलंद आवाज़ से बोल रहे थे कि अपने वालिदैन को रोको, वरना मैं तुम्हारे बहन और भाई को मार दूंगी। और उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं और अपने वालिदैन से कहना कि आप कभी वापस नहीं आएंगे। वो बोल रहे थे कि वो किसी दूसरी दुनिया में जा रहे हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। उनकी आवाज़ इतनी खौफनाक थी कि हम सब डर गए थे और स्टोर रूम में जाकर अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया था। मेरे वालिदैन और आंटी शमीम बहुत परेशान हो गए। अंकल अदनान आए तो उनको सारे माजरे का पता चला। मेरे वालिदैन ने अंकल अदनान से मिलकर मुझे और मेरी बहन नूर को बहुत तलाश किया, लेकिन हम उन्हें नहीं मिल सके। सारी फैमिली बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर अंकल अदनान ने मुनीर शाह साहब को फ़ोन किया और सारी बात बताई। मुनीर शाह साहब ने कहा कि परेशान ना हो, उन्हें सब मालूम है। नवीद और नूर यहीं पर हैं, वो थोड़ी देर तक आ जाएंगे। वो चुड़ैल उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये सब यहाँ पर आने से रोकने के उसके हथकंडे हैं। अंकल अदनान बोले, ठीक है। अब मेरे वालिदैन इंतज़ार के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। थोड़ी देर गुजरी तो दरवाज़े पर गरजदार आवाज़ आई। सब दरवाज़े की तरफ दौड़े। क्या हुआ है? उन्होंने देखा तो सामने मैं और नूर खड़े थे और खौफनाक नज़रों से मेरे वालिदैन को देख रहे थे। नूर खौफनाक आवाज़ से बोली कि तुम लोग उस आमिल के पास क्या लेने गए थे? अगर तुम सब इस खुशफहमी में हो कि वो नाम नहाद आमिल तुम्हारे बच्चों की जान मुझसे छुड़ा लेगा, तो ये सब तुम अपने दिमाग से निकाल दो। नूर ने आगे बढ़कर मेज़ पर पड़ी एक छुरी उठा ली और वालिदैन की तरफ बढ़ने लगी। मेरे वालिदैन पीछे हटने लगे। वो नूर से कह रहे थे कि बेटा ये तुम क्या कर रही हो, छुरी नीचे रखो। लेकिन वो तो नूर नहीं थी, बल्कि वही चुड़ैल थी जो कि नूर में बोल रही थी। मेरे वालिद साहब को याद आया कि आमिल ने पानी की बोतल दम करके दी थी और कहा था कि चुड़ैल आपको यहाँ आने से रोकेगी और नहीं आने देगी। अगर ऐसा हुआ तो पानी का छिड़काव करना, तो वो चुड़ैल दूर हो जाएगी। मेरे वालिद साहब ने फ़ौरन आगे बढ़कर मेज़ से वो पानी की बोतल उठा ली और जैसे ही मेरे वालिद साहब ने बोतल उठाई तो नूर चीख कर बोली कि इस बोतल को फेंक दो। मेरे वालिद साहब ने जल्दी से बोतल खोलकर उस पर पानी का छिड़काव कर दिया। पानी का छिड़काव करते साथ ही नूर बिल्कुल ठीक हो गई। मेरे वालिद साहब ने मुझ पर भी पानी का छिड़काव किया और मैं भी होश में आ गया। अगले दिन शाम का इंतज़ार करना था। सब बेचैनी से रात गुजरने का इंतज़ार करने लगे। नींद तो जैसे आंखों से कोसों दूर थी। सारी रात जागते हुए गुजर गई। सुबह सब ने नाश्ता किया। मैं और नूर अभी तक ठीक थे। जैसे ही दोपहर का टाइम हुआ तो नूर की हालत बदलना शुरू हो गई। उसकी आंखें लाल शुरू हो गईं और वो गरजदार आवाज़ से बोली, खबरदार उस आमिल के पास ना जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सब इस बात को जहन से निकाल दो कि वो आमिल मुझसे तुम्हारे बच्चों की जान छुड़ा लेगा। वो कुछ नहीं कर सकता। मेरे वालिद साहब ने जब ये सुना तो फ़ौरन पानी की बोतल उठाकर नूर पर छिड़काव किया तो उसने चलाना शुरू कर दिया। मैं जल गई, मैं मर गई, बचाओ बचाओ। और फिर नूर की हालत बिल्कुल ठीक हो गई। शाम का वक्त करीब आ रहा था। मेरे वालिदैन ने हम दोनों को कार में बिठाया और मुनीर शाह साहब की तरफ चल पड़े। जब हम जंगल में पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। मेरे वालिद साहब ने कुछ चीज़ें बाज़ार से ली थीं, वो मुनीर साहब को दीं और मुनीर साहब ने वो चीज़ें लेकर फ़ौरन चिरागों का एक बड़ा सा दायरा लगाया और उनको रोशन कर दिया और फिर अगरबत्तियाँ और खुशबुएँ जलाईं और हम सब को उस दायरा के अंदर आने के लिए कहा। उन्होंने हमसे कहा कि कुछ भी हो जाए आपने इस दायरे से बाहर नहीं जाना। हमने कहा ठीक है। फिर मुनीर शाह साहब ने दायरे में बैठकर पढ़ाई करना शुरू कर दी। जब पढ़ाई करते हुए थोड़ी देर हो गई तो ज़बरदस्त आंधी आना शुरू हो गई। इतनी तेज़ आंधी थी कि ऐसा लगता था कि हम सब उड़ जाएंगे। हैरत की बात थी कि इतनी तेज़ आंधी के बावजूद वो चिराग नहीं बुझे और अपनी जगह से हिले तक नहीं। फिर इतनी गरजदार, खौफनाक और दिल दहला देने वाली आवाज़ें आना शुरू हो गईं। ऐसे लग रहा था कि हमारे इर्द गिर्द काफ़ी मावराई मखलूक जमा है। फिर हम सब को इतनी खौफनाक शक्लें नज़र आईं कि हम सब ने आंखें बंद कर लीं। दरख्तों को जब आंधी छूकर गुजरती तो इतनी खौफनाक आवाज़ आती कि अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। फिर एक गरजदार आवाज़ सुनाई दी,
जो कि आमिर से मुखातिब थी। उसने कहा कि आमिर, तू छोड़ दे ये सब कुछ, तू ये सब फजूल में कर रहा है, इस सब का कुछ फ़ायदा नहीं है। मुनीर शाह साहब ने कुछ जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मुनीर शाह साहब बोले, तुमने इनकी जान छोड़नी है कि नहीं, मुझे बता दो, मैंने तुमसे इतनी लंबी बातें नहीं करनी। जवाब आया कि नहीं छोड़नी, जो दिल में है कर लो। मुनीर शाह साहब ने कहा, मैं तुम्हारी सारी फैमिली को जला दूंगा, तुम बड़ी जालिम हो, इन मासूम बच्चों ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी तुम इनकी ज़िंदगी के पीछे पड़ी हो। उसने कहा, हाँ पड़ी हूँ, जाओ जो करने होता है कर लो। और वाकई एक ताकतवर चुड़ैल थी जो ऐसे जवाब दे रही थी। अल्लाह के कलाम के सामने तो किसी की कोई ताकत नहीं होती। मुनीर शाह साहब काफ़ी देर कुछ पढ़ते रहे और फिर उन्होंने सामने हाथ का इशारा किया तो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। वो कह रही थी कि छोड़ दो, अल्लाह का वास्ता छोड़ दो। मुनीर साहब बोले, अब वक्त निकल गया है, अब जलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर उन्होंने जब दूसरी मरतबा हाथ से इशारा किया तो चिल्लाने की आवाज़ें आईं कि हाय जल गई, मर गई, और फिर वो आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गईं। फिर मुनीर साहब हमसे मुखातिब हुए कि अब आपकी जान उस चुड़ैल और उसके कुंबे से हमेशा हमेशा के लिए छूट गई है, क्योंकि मैंने अल्लाह के फजल से उसके सारे कुंबे को जला दिया है। हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैं और नूर अब बिल्कुल ठीक हो चुके थे। मेरे वालिदैन ने मुनीर शाह साहब का शुक्रिया अदा किया और फिर घर को चले आए और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे।